روم، ایتھنز، انطاکیہ، قبرص، فلسطین، شام اور یہاں تک کہ فیلاڈیلفیا میں بھی خدا پرستوں کی تعداد بڑھتی جا رہی. ان کو ہلاک کیا جاتا ہے، سزائیں دی جاتی ہیں. ہم ان کو سمندروں میں اور وحشی درندوں کے سامنے ڈالتے ہیں، لیکن پھر بھی ان کی تعداد کم نہیں ہوتی. یہاں تک کہ ان کا نفوذ اب ہمارے محلوں میں بھی ہو گیا ہے. نہیں معلوم کہ یہ دھوبی کہاں سے محلوں میں گھس بیٹھے ہیں. جناب جولیس، یا تو تم سمجھتے نہیں یا ناسمجھی کا دکھاوا کرتے ہو. کیا شہنشاہ ڈیمیسین نے اپنے چچا زاد بھائی فلابس فلمناس اور اس کی بیوی کی عیسائی ہونے کے جرم میں گردن نہیں اڑائی؟ تو کیا وہ بھی دھوبی تھے؟ کیا اسی صورت میں بہتر نہیں کہ ہم بھی اپنے دربار کے سلسلے میں ہوشیار رہیں؟ تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ میں کوئی خاص مقصد نہیں، فقط احتیاط کے طور پر. لیکن مجھے اپنے درباریوں پر پورا اعتماد ہے. پھر بھی تم سے متفق ہوں، ہمیں ہوشیار رہنا چاہیے. عالی جناب میکسیملین، تو آخرکار ہمارے مشیر اعلیٰ تشریف لے آئے. خدمت گزاری کے لیے تیار ہوں عالی جناب. درود و سلام عالی جناب دقیانوس پر. تاخیر کے لیے معافی چاہتا ہوں، امید ہے مجھے معاف کر دیں گے. جناب میکسیملین، آپ اب تک کہاں تھے؟ حاکم والا سے حقیقت کو چھپانا ممکن نہیں. آج میں ایک رومی نہیں، میں خود بتاتا ہوں. یقیناً اس مرد کے جلائے جانے کی تقریب میں شریک ہونے گئے ہوں گے. ہاں، اس مرد کے جلائے جانے کو جس نے شہنشاہ کے مجسمے کو گرا دیا اور ہمارے دوسرے خداؤں کی بھی اہانت کی. کیا میرا اندازہ ٹھیک نہیں ہے؟ آپ کا اندازہ بالکل ٹھیک ہے. وہ منظر دیکھ کر جوش آ گیا ہوگا. بھڑکتی ہوئی آگ، آسمان سے بات کرتے ہوئے شعلے، چیخ پکار. ہماری فتح کا نظارہ یقیناً قابل دید ہے. اس قسم کے مناظر انسان کو خوش کرتے ہیں اور دشمنوں کو دہشت زدہ. لیکن جناب میکسیملین، ایسے مناظر تو اس شہر میں ہر روز دیکھے جاتے ہیں. مجھے تعجب ہے کہ اس رسم کی خاطر آپ اس اہم جلسے میں شریک نہ ہو. علی جناب صرف رسم کا مشاہدہ کرنے نہیں، میں ایک رومی خاندان سے ملنے بھی گیا تھا. تو کیا وہ بیمار تھے؟ جی نہیں، ضرورت مند تھے. انہیں دلاسا دیا اور ان کی ضرورت بھی پوری کی. کیا تم سچ مچ یہ سمجھتے ہو کہ محبت اور دلجوئی کے ذریعے عوام پر حکومت کی جا سکتی ہے؟ میں عالی جناب دقیانوس کے مقصد کو سمجھتا ہوں، حکومت تلوار کے زور پر، لیکن میں تلوار کو کافی نہیں سمجھتا. جناب میکسیملین، یہاں ہر روز ہم نئے نئے مذہب کے ظہور دیکھتے ہیں. ان مذہبوں کو تلوار کے بغیر ہم کس طرح دبا سکتے ہیں؟ دنیا میں بہت سے مذاہب ظاہر ہوئے اور مختلف حکام نے ان کے ساتھ مختلف سلوک کیے. کبھی سیاستدان سمجھداری کے ساتھ محبت کے ذریعے اپنے مقصد میں کامیاب ہوئے تو کبھی تلوار کے ذریعے. میرا عقیدہ یہ ہے کہ محبت وہ کام کر سکتی ہے جو تلوار نہیں کر سکتی. تم غلطی پر ہو میکسیملین. حکومت صرف تلوار کے سہارے ممکن ہے. محبت کچھ نہیں کر سکتی، صرف تلوار کے زخم کی سوزش کو کم کر سکتی ہے، بس. علی جناب، کیا بہتر نہ ہوگا کہ کام کی باتیں کی جائیں؟ معاف کیجیے گا علی جناب، کیا میں جناب میکسیملین سے ایک سوال پوچھ سکتا ہوں؟
जिस खानदान से आप मिलने गए थे, क्या ये मुजरिम पुलोटन से ताल्लुक नहीं रखता कि जिसको आज ईसा की पैरवी करने के जुर्म में जला दिया गया? एक मुजरिम रूमी को सजा देना जरूरी है तो एक हाजतमंद रूमी की मदद भी। ताज्जुब की बात है, तुम मसीही मुजरिम की दिलजोई के लिए गए थे। जी आली जनाब, ये बात दुरुस्त है, लेकिन आली जनाब, क्या एक शख्स के जुर्म के खातिर उसके पूरे कुनबे को सजा देनी चाहिए? अच्छी तरह समझ लो मैक्सिमिलियन, तुम मुझे अच्छी तरह जानते हो और तुमको मालूम है कि मैं इंसानों की जान को एक कीड़े की हद तक भी अहमियत नहीं देता। तुम मेरी बेटी के शौहर हो, लेकिन मेरी आंखों से ज्यादा अजीज नहीं हो। अगर नहीं जानते हो तो मेरी बेटी से पूछ लेना कि मैंने किस तरह अपने खाइन की आंखों को निकाल कर फेंक दिया था। अपने काम से काम रखो, वरना अगर मैं किसी पर शक कर गया तो गजब हो जाएगा। बस। और कोई सवाल नहीं पूछना है? नहीं, सिर्फ एक मशवरा है। मैं अगर आपकी जगह होता तो बानो हिलन के अंजाम को ज्यादा सोचता। अजीब बात है, इसका आपसे क्या ताल्लुक है? आप अपने इस सलूक से उनको खतरे में डालते हैं। अपने सलूक के बारे में ज्यादा होशियारी से काम लें। तुम भी अपने मुंह को संभाल के रखो, क्योंकि छोटा मुंह बड़ी बड़ी बातें करने लगा है। कहीं टूट न जाए। क्या मुमकिन है कि जनाब मैक्सिमिलियन भी एक मुआहिद हो? इतनी आसानी से नहीं कहा जा सकता। आने वाले वक्त का इंतजार करना चाहिए। जनाब मैक्सिमिलियन। हाँ, सुना आपने, काजी जूलियस से कह रहा था कि एक शख्स ने ईसाओं के ज़ेरे असर अदुनिया के छुपने की जगह बता दी है। अंदेशा तो था। कोई बात नहीं, मैंने गालोस को अदुनिया के पास भेज दिया है। अभी चलते हैं। जूलियस कैसे समझ गया कि आप कहाँ गए थे? यकीनन किसी को मेरी जासूसी पे लगा रखा है। आपके ख्याल में वो कितना जानता है? इतना तो खैर जानता है कि मैं और मेरी बीवी बुत नहीं पूछते, लेकिन ये नहीं मालूम कि मुवहिदों के साथ हमारे रवाबित के बारे में भी जानता है या नहीं। अगर आप पे शक करता है तो फिर हम पे भी करता होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। उसको जनाब मैक्सिमिलियन से बोझ है, न कि हमसे। अफसोस की बात है, उसकी नजरें बानो हिलन पर शुरू से थी। हाँ, ये बात मैं भी जानता हूँ, हेलेन भी जानती है और दकियानूस भी। लेकिन हेलेन उससे कहीं बालातर थी कि उसकी शादी जूलियस जैसो से होती। तो फिर आपको परहेज करना चाहिए, वो दकियानूस से बहुत ज्यादा करीब है। जो बुग़्ज़ वो आपसे रखता है, अगर उसका बस चले तो वो आपको जरूर जरर पहुंचाएगा। कोई बात नहीं, उसके पास हमारे खिलाफ कोई सबूत नहीं है और खुदा ने चाहा तो आइंदा भी कोई सबूत नहीं होगा। पता है, मुझे जनाब दकियानूस से इससे भी कहीं ज्यादा सख्त रवैये की उम्मीद थी। वो जब तक मजबूर ना हो ऐसा नहीं करेगा। वो खूब जानता है कि फिलाडेल्फिया में उसकी हुकूमत उसी वक्त तक है जब तक हमारे वालिदों की हिमायत हासिल है।
اور اسی مقصد کے لیے شہنشاہ سے ہم لوگوں کو مشیر کی حیثیت سے مانگ رکھا ہے. جناب فرماندار اجازت دیجیے. آپ کی حکومت کی بنیادوں کو مناسب یا نامناسب فیصلہ کرنے والے مستحکم یا متزلزل بنا سکتے ہیں. میکسیملین آپ کا داماد ہونے کے علاوہ روم کی مجلس اعلیٰ کے نمائندے مارسیلس کا بیٹا بھی ہے. در حقیقت شہنشاہ کے قریب ترین دوستوں میں سے. اس کے بارے میں فیصلہ کرنا بہت مشکل ہے. ہاں سمجھتا ہوں، لیکن اس کی ضد کی وجہ سے ممکن ہے دوسرے بھی گستاخ ہو جائیں. اس کی جانب سے اگر خطرہ محسوس کروں تو اسے ایک لمحے کی بھی فرصت نہ دوں گا. فی الحال اس کی ضرورت ہے. پھر کل ملیں گے. اچھی بات ہے. مجھے کھیلنا ہے، مجھے کھیلنا ہے، مجھے بھی کھیلنا ہے. آرام سے کھیلو بیٹا. ارکمید تمہارے بابا آ گئے. سلام بابا. میں آج اچھا بچہ تھا بابا. ہاں جانتا ہوں میرے بیٹے، تم ہمیشہ اچھے بچے رہے ہو. آؤ ارکمید میرے پیارے بیٹے، تم وہاں جا کر کھیلو، تم وہاں جا کر کھیلو. کیا ہوا؟ کیا کوئی حادثہ ہو گیا ہے؟ ہاں پلوٹن. کیا اسے مار ڈالا؟ ہاں تمہارے باپ کے حکم سے. اس کو معبد اپولون کے سامنے زندہ جلا دیا گیا اور حکم دیا گیا ہے کہ اس کی لاش کو 3 دن تک سر عام رکھ دیا جائے، دوسروں کی عبرت کے لیے. وہ میرے لیے باعث ننگ ہے. میں نے کہا ہے کہ وہ میرا باپ نہیں ہے. آپ مجھے اس کا تانا نہ دیں. نہیں ہیلن، باپ کی گناہ بچوں کے سر نہیں آتی. یہ آپ خود جانتے ہیں، میں اسے باپ کی بیٹی ہونے سے خود شرمسار ہوں. میں کبھی کبھی جو اس کے پاس جاتی ہوں یہ آپ کے لیے یا کسی کی نجات کی خاطر، ورنہ میرا اس سے ملنے کو دل نہیں چاہتا. میں نے بھی کبھی اس کے برے اعمال کو تم سے نہیں جوڑا ہیلن. کیا کروں کہ اس کے جرائم اب مجھ سے دیکھے نہیں جاتے. آپ نے وہ دیکھا ہی کہاں ہے جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. آج تمہارے باپ نے نہیں غلطی ہو گئی، دقیانوس نے مجھے دھمکی دی ہے کہ اگر اس کی آنکھ بھی ہوں تو نکال ڈالے گا. یہ حقیقت ہے. بے شک وہ اپنی دھمکی پر عمل کرے گا. سلامت ہے جناب. بہت اچھا کام کیا ہے زبیر، بہت خوب، شاباش. تمہیں نئی ماموریت دیتا ہوں. کمہار ایدونیا پر نظر رکھو اور اس سے غافل نہ ہو. جو حکم میرا. لگتا ہے کہ جولیس کا خطرہ بھی میکسیملین کے خطرے سے کم نہیں ہے. میں کیا کہہ سکتا ہوں علی جناب. جو حکم ہے میرے آقا. خاص کر ان پر نظر رکھو جو اس سے رابطہ قائم کرتے ہیں. آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہوں. یہ لو.
चलते हैं। वो कह रहा था कि तुम जानती हो कि किस तरह से उसने अपनी खाइन आंख को निकाल डाला। मेरे ख्याल से उसका इशारा तुम्हारी माँ की तरफ था। हाँ, उसने सच कहा है। मैंने खुद देखा है, जो नहीं भूल सकती। मेरी माँ दमिश्क के करीब एक गांव से थी। वहाँ के सारे लोग बारनवा के जरिए मसीही हो गए थे। रोमियो के हमले में मेरी माँ के सिवा वहाँ के सारे लोग मारे गए। मेरी माँ ने अपनी आंखों से देखा कि किस तरह दकियानूस के सिपाहियों ने उनके घर वालों की गर्दनें उड़ा दी। हकीकत में क्योंकि मेरी माँ एक शहजादी थी, इसीलिए मरने से बच गई। फिर उसने मेरी माँ को जबरदस्ती अपनी बीवी बना लिया। जानता हूँ एलेन, पहले भी इन बातों को सुन चुका हूँ। आपने तो सुना है, मैंने अपनी आंखों से देखा है। अब आप ही बताइए, मैं कैसे भूल सकती हूँ? वो मेरी रंजदीदा माँ हमेशा इस इंतजार में रहती थी कि दकियानूस और उसके रोमी खुदाओं से बदला ले सके, लेकिन उन्हें ये फुर्सत नहीं मिली क्योंकि वो हमेशा दकियानूस के ज़ेरे निगरानी थी। यहाँ तक कि हमें मालूम हुआ कि कई इबादत गाहों में बुतों को तोड़ दिया गया और रोमी सिपाही बुत तोड़ने वालों को गिरफ्तार करने लगे। यहाँ तक कि एक दिन या मरियम मुक़द्दस, ये काम खतरनाक है, अपने हाल पर रहम करो। बीबी, अगर आप गिरफ्तार हो गई तो आपके टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएंगे। खुदारा ये काम ना करो। तुम बेकार बातें मत करो, मेरी मदद करो। मैंने तुमको अब्रीगन की निगरानी पर लगाया था, जबकि तुमने खुदाओं से गद्दारी की और उसका साथ दिया। अगर तुम्हारी मदद न होती तो उसकी इबादत गाहों तक रसाई न होती। अब तुम्हारी सजा मौत है। उसकी कोई खता नहीं, उसने मेरी इताअत की है, उसे रहा कर दो। यही उसकी सजा है कि उसने मेरे हुक्म के मुखालिफत में तुम्हारी इताअत की है। मार दो उसे। उसने अपनी गद्दारी को भुगता, अब तुम्हारी बारी है खुदाओं की आग में जलो। तुम मुझे मौत से मत डराओ,
जिस दिन तुमने मेरे वालिदैन और मुतालिकीन की मेरे आंखों के सामने पत्थर के बुतों के कदमों में कुर्बानी की, तो मैंने उसी वक्त इंतकाम का फैसला कर लिया था। मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ, क्या तुम अपोलोन के सामने खुदाई ईसा से इकराह का ऐलान करोगी? किसी की परस्तिश नहीं करती और उसके सिवा किसी को खुदा नहीं मानती। हमारे रोम के खुदाओं के सामने क्या तुम सजदा और कुर्बानी करोगी? लानत हो रोम के खुदाओं पर, पत्थर के बुतों और बुत परस्तों पर, और लानत हो रोम की जालिम हुकूमत पर। नहीं नहीं, ऐ मेरे खुदा, ऐ खुदाए अपोलोन, इस कुर्बानी को कबूल कर। मेरी अम्मी, नहीं नहीं मेरी अम्मी। हेलेन, मेरी बेटी। ऐ ताकतवर अपोलोन, ये है खुदाओं से गद्दारी कर। खुदाया, मेरी अम्मी, मेरी कुर्बानी कबूल कर, इस शर्मिंदा बंदी को कबूल कर। इलाही, मेरी बेटी को तेरे हवाले करती हूँ। मेरी अम्मी, तू उसकी हिफाजत फरमा। इलाही, मैंने बुतों को तेरे लिए तोड़ा है। अम्मी, तू ही मेरी मदद फरमा। अम्मी, मेरी माँ जलती रही और मैं कुछ न कर सकी। खुदा उनको मरियम मुक़द्दस के साथ महशूर करे। वो एक बहादुर औरत थी। मैं आपके लिए बहुत परेशान हूँ। डरती हूँ कि कहीं उसे आपके अकीदे का पता न चल जाए। मुझे डरावनी ख्वाब नजर आते हैं। पता नहीं खुदा ने क्या मुकद्दर किया है। मुझे डर लगता है। इतना परेशान होने की कोई बात नहीं। घबराओ नहीं, जो भी हो हम एक दूसरे के साथ होंगे। मैंने ख्वाब में देखा कि दकियानूस ने आपको कत्ल कर डाला, मगर आप जिंदा हैं। वो हमें लगातार धमकियां दे रहा था और वो हमारे दरमियान खड़ा था। हम एक दूसरे तक नहीं पहुंच पा रहे थे। हम एक दूसरे से बहुत दूर थे। मैं जवान थी और आप बूढ़े हो गए थे। लग रहा था कि आप मेरे बाप हैं, लेकिन समझ ना सकी कि आप में से कौन मेरा बाप है। वो आपको कत्ल करके खुशियां मना रहा था। मैं डरती हूँ, मुझे डर लगता है। संभालो अपने आप को। एक ख्वाब के लिए तो इतना परेशान नहीं होते। खुदा अपने मुवाहिद बंदों को कभी अकेला नहीं छोड़ता। मेरा आपके अलावा कोई नहीं। आप सिर्फ मेरे शौहर ही नहीं, आप मेरे उस्ताद हैं और मेरे मुरब्बी हैं, मेरे मुंजी हैं। मैं जो कुछ हूँ आपसे हूँ। मैंने रोशनी आपसे देखी, उम्मीद भी आपसे पाई और ईमान भी आप ही से हासिल। वो नूर पहले ही से तुम्हारे अंदर रोशन था हेलेन। मैंने तो कुछ भी नहीं किया है। मुझे तुम पे नाज है। रात मैंने ख्वाब में देखा कि ये तस्वीर मेरी माँ की है, हालांकि वो ऐसी न थी। मैंने देखा मैं मर गई हूँ और आप हैरान हैं कि मेरी लाश पर यकीन करें जो कब्र में है, या इस तस्वीर पर जो इस दीवार पे है। मैं डरती हूँ इस तस्वीर से। तुम क्यों अपने आप को इतना परेशान करती हो? एक मामूली सी तस्वीर से
इतना तो नहीं घबराते? नहीं? इस तस्वीर को यहाँ से हटा दें। नहीं नहीं नहीं, मुझे अपनी बीवी की तस्वीर पसंद है, मैं किसी कीमत में यहाँ से नहीं हटाऊंगा। हम बहुत कम हैं, लिहाजा हमारी तमाम तर कोशिश यही होनी चाहिए कि अपनी पूरी ताकत अपने हम मजहब लोगों की तरबियत और अपने मजहब हक्का के इत्तिफा और उसकी तरवीज में सर्फ कर दें। आखिर कब तक हमारे हम मजहब गिरोह गिरोह मौत का निशाना बनते रहें? आखिर हम खामोश क्यों बैठे रहें? मेरा तो ये ईमान है भाइयों कि इस पुराशोभ जमाने में तरह तरह की मुसीबतें झेल कर साबित कदम रहना ही खुद एक बहुत बड़ी इबादत है। अगर आप लोगों को हुकूमत के खिलाफ ना भड़काएं तो ईसाइयों और रूमियों के दरमियान कोई झगड़ा ना होगा। क्या हमारे आका ईसा मसीह ने हमको जालिम की इताअत से मना नहीं किया? आपको ये हक नहीं है कि बिला वजह से लोगों की जान खतरे में डालें। कुदरत खुदा की है, वो जिसको भी चाहेगा अता करेगा। बस कोई भी ताकतवर नहीं है कि जिसने अपने इक़्तिदार को खुदा से हासिल ना किया हो। खुदावंद अपनी कुदरत को अपने सालेह बंदों और पैगंबरों को अता करता है। बेशक सितमगरों की ताकत शैतानी ताकत है। ना इलाही, क्या इब्राहिम और नमरूद, मूसा और फिरौन या ईसा और हेरोद की ताकत एक है? सलाम मर्दे खुदा। तुम पर भी सलाम गैलस। कैसे मिजाज है? आली जनाब में कैसे मिजाज है? आली जनाब मैक्सिमिलियन कैसे हैं? उन्होंने मुझे आपके पास भेजा है। आपके छुपने की जगह आश्कार हो चुकी है। जल्द अज जल्द इस जगह को छोड़ दें। यानी खतरा इस कदर करीब है? जनाब मैक्सिमिलियन बगैर सबब खबरदार नहीं करते। जल्दी कीजिए, कहीं देर न हो जाए। बहुत खूब, आप चलें, मैं खुद ही आ जाऊंगा। पहले इन लोगों को विदा कर लूं। इनसे कहिए एहतियात से जाए मुमकिन है निगरानी की जा रही हो। भाइयों, अभी अभी हमें ये इत्तला मिली है कि यह जगह महफूज नहीं है, लिहाजा निहायत एहतियात के साथ यह जगह तर्क करते हैं। 3 रोज बाद शहर के बाहर वाले कब्रिस्तान में फिर मिलेंगे। आप इन कामों से लोगों को ईसाई मजहब की तालीमात के खिलाफ भड़का रहे हैं और उन लोगों की जानें भी आप खतरे में डाल रहे हैं। खुदा हम सब लोगों की हिदायत करे। अगर वहां भी हमला करके लोगों का कत्ले आम किया तो कौन जवाबदेह होगा? खुदा पे भरोसा करना चाहिए। जो खुदा की मर्जी हो वही होगा। उस्ताद, अगर जरूरत हो तो आपकी हिफाजत के लिए मैं रुक जाऊं? नहीं, तुम जाओ, परेशानी की बात नहीं, खुदा बुजुर्ग है।
तू यहाँ क्या जासूसी कर रहा है? इधर से गुजर रहा हूँ। बिला वजह दोबारा तुझे अगर यहाँ देख लिया तो जिंदा जला दूंगा। भाग जा। क्या खबर है मैथ्यू? आली जनाब जूलियस, अजरविल यहूदी के पास कुछ खबरें हैं। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुमसे नहीं कहा था कि दुनिया पर नजर रखो? कहा तो था, लेकिन हुजूर अभी चंद लम्हे पहले किसी ने उसको तांगे के जरिए भगा दिया। चूंकि हुजूर मैं पैदल था, लिहाजा मैं उसका पीछा ना कर सका। पैदल क्यों? जनाब वहां घोड़े की जरूरत नहीं थी। मुझे नहीं मालूम था कि उसको वहां से भगा देंगे। ये महल की खबरें बाहर किस तरह पहुंची? तांगे वाले को भी नहीं पहचाना? हुजूर उसने चेहरा छुपा रखा था, लेकिन मेरे ख्याल में तांगा शायद मैक्सिमिलियन का था। मैक्सिमिलियन के घर पर नजर रखो, देखो वही तांगा है या नहीं। जाओ। जाता हूँ वाली जनाब। ग्रुप से पहले मुझे घर लौटना है, आप परेशान ना हो, अभी बहुत वक्त है। माफ कीजिए आली जनाब, क्या एक सवाल पूछ सकता हूँ? मैथ्यूस, तुम मेरे करीबी दोस्त हो, जो चाहे पूछो। मैक्सिमिलियन से आपका इख्तिलाफ कब और कहां से शुरू हुआ? चूंकि तुम पर भरोसा इसलिए बताता हूं। मैं बरसों से हिलन को चाहता था और ये बात दकियानूस भी जानता था, लेकिन मैक्सिमिलियन के आने पर दकियानूस ने अपनी बेटी उसके हवाले कर दी। मैंने उसी दिन से फैसला किया कि साबित करूं मैक्सिमिलियन हिलन के काबिल नहीं है, वो गद्दार से ज्यादा कुछ नहीं, और साबित करूंगा। मैंने उसके खिलाफ सबूत फराहम किए हैं कि जिनकी इत्तला दकियानूस को दूंगा। अगर उसने तवज्जो ना की तो फिर दूसरी इत्तला शहनशाह को दूंगा। जनाब दकियानूस ने मैक्सिमिलियन को आप पर फौकियत क्यों दी? फिर ये बात आ जाती है रूम में हम सब के असर रसूख पर। मैक्सिमिलियन एक रूमी सेनेटर का बेटा और मैं रूमी फौज के एक साबिक अफसर का बेटा। दकियानूस की हुकूमत के लिए
हम में से कौन अच्छा आमी हो सकता है? अफसोस है आली जनाब। छोड़ें। हम कहाँ जा रहे हैं गैलेस? आप कुछ अरसे के लिए शहर से दूर रहें। जंगल में छुपने की जगह बहुत है। आप चंद दिनों के लिए छुप जाएं ताकि अमन अमान हो जाए और इस तरह रूमी आपसे गाफिल हो जाएं। मैं हर रोज आपके लिए खाना लाता रहूंगा। नहीं, मैं अकेला नहीं हूँ। मुझे इज्तिमा में पहुँचना है। जान की खातिर फर्ज कैसे भुला दूँ? इज्तिमा और लोगों को दावत देने में देर नहीं लगेगी। अभी बहुत वक्त पड़ा हुआ है। लेकिन मैंने तो अपने मोमिन भाइयों के साथ 3 दिन के बाद पहुंचने का वादा किया है। एहतियात भी जरूरी है। खुदा बुजुर्ग है गैलेस। सुनो, मैं क्या कहना चाहती हूँ। कहो, मैं सुन रहा हूँ। नहीं सुन नहीं रहे? मालूम नहीं किस दुनिया में हो। मुझे माफ करना एथिने। शहंशाह की आमद की खबर ने मुझे हैजान ज़दा कर दिया है। काफी है कि बस एक गलती हो, सब खराब हो जाएगा। मेरी सारी उम्मीदें नक्श बराब हो जाएंगी। काश तुम बुलंद परवाजी के बजाय कुछ अहम कामों पर भी तवज्जो देते। आथिने, तुम नहीं। कुछ अहम कामों पर भी तवज्जो देते। आथिने, तुम नहीं जानती कि शहंशाह की यहाँ आमद रोम में मेरी हुकूमत को किस कदर इस्तेहकाम अता कर सकती है। इसके अलावा मेरी बहुत सी यादें ताजा हो गई हैं। एड्रिन के साथ क्या दिन गुजारे थे, गोया अभी कल ही की बात है। इराक व अजम की जंग, कितनी फख्र की बात है। जिस वक्त मैं लजन का फरमानदार था, एड्रीन ने हुक्म दिया कि फाल निकालने के चूजों को बाहर लाएं। फालगीर ने फिर दाना डाला। मेरे खुदा, चूजों ने कितने शौक से खाया। ये उस बात की अलामत थी कि जंग हमारे हक में खत्म होगी। आथिने, अजीम फतह नजदीक थी। किस कदर मुबारक फाल था, किस कदर मुबारक फाल आथिने। उसके बाद एड्रीन अज़्म और इत्मीनान के साथ शहर की जानिब चंद कदम बढ़ा और ऊंची आवाज में पुकारा, हैं अगर इस शहर में कोई खुदा तो मेरी बात सुने। मैं आपसे चाहता हूं कि शहर के घरों से और इबादत गाहों से दूर हो जाएं और उस पे खून गम बरसाएं और हमारे नेज़ों, तीरों और तलवारों के मुकाबले इन पस्त लोगों का दिफा न करें और हमें इस शहर में फतह के साथ दाखिल होने दें। फतह, फतह, फतह। मैंने नहीं कहा था कि मेरी बात नहीं सुनते, अपने ही ख्वाबों में रहते हो। ठीक है, चलो कहो, क्या कहना चाहती हो? तुम्हारे ख्याल में शहंशाह किसको अपना जानशीन बनाएंगे? मुझे नहीं पता। तुमने कहा था कि शहंशाह से तुम्हारी पुरानी दोस्ती है। एड्रीन के साथ मेरी माजी की यादें मेरे जहन से नहीं निकलती। मैं लगातार उन दिनों का सोचता हूँ। मेरा मतलब पुरानी यादों को ताज़ा करना नहीं है। मैं चाहती हूँ कि हम इस दोस्ती से ज्यादा फायदा उठा सकें। क्या फायदा उठाया जा सकता है? उनसे कहो कि पुरानी दोस्ती की खातिर और उनकी जान बचाने के सिले में तुमको जानशीन बना दे। अगरचे ये आरज़ू एक बुलंद परवाज़ाना है, बहरहाल इसको पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए और इसमें कोई नुकसान भी नहीं है। बुलंद परवाज क्यों?
तुम्हें अपने लियाकत पर शक है या शहनशाह की दोस्ती पर? किसी पर भी नहीं। मेरा शक रूम की शूरा के फैसले पर है। मेरा ख्याल है कि अगर एड्रीन भी मान जाएं तो वो मंजूरी नहीं देंगे। लेकिन कोई हर्ज नहीं, अंधेरे में तीर है। तुम नहीं जानते दकियानूस, कितना मजा आता है जब मैं खुद को रूम की खातून अव्वल तस्वुर करती हूँ। तो मेरी तजवीज है कि तुम खुद भी शुरू हो जाओ। एड्रीन की बीवी शारून भी आ रही है, तुम उससे दोस्ती करो। बीवियां शौहरों के फैसले पर मुअस्सिर किरदार अदा करती हैं। अगरचे मैं उसको देख नहीं सकती, तुम्हारी तजवीज बुरी नहीं। मुतमईन रहो, मैं उस पर अमल करूंगी। आली जनाब जूलियस। सलाम हो अली जनाब दकियानूस पर। जनाब जूलियस, शहर की क्या खबर है? सब ठीक है। मेरी वाहिद परेशानी महल के अंदर से है, क्योंकि इसकी खबरें बाहर पहुंच जाती हैं।